instant food delivery segment, many questions were raised about delivery partner safety as well as the 10-minute food delivery, whether it's even possible or is it simply a marketing gimmick. Over the last year, India's e-commerce market has seen the evolution of quick commerce as one of its most in-demand verticals, while experts opine that this was a natural progression for online retailers. As we've seen with all the D2C players post-pandemic, CAC or customer acquisition cost has increased as well. So then how does it make sense for someone to be in business like this and be profitable? But today this video cover about the grocery, why grocery startup has been failed in India. Grocery एक ऐसी चीज जो आज दुनिया के हर इंसान को rather than कोई जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर रहा है लेकिन करे या ना करे, लेकिन वो अपने घर के पास बेसिक एसेंशियल फूड्स लाइक आटा, दाल, चावल घर जरूर लाएगा। लेकिन और इस चीज को आप 10 मिनट में सारी कंपनी लाइक जोमेटो, डंजो, स्विगी 10 मिनट में डिलीवर कर रही है, तो बिना कोई डिलीवरी चार्ज के। तो स्टैटिस्टिक्स बताता है 2021 में इंडिया ऑर्डर 5.5 बिलियन ग्रोसरीज ऑनलाइन, लेकिन इतनी डिमांड होने के बाद भी आज तक कोई भी ऑनलाइन ग्रोसरीज कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। इंडिया में आप आज तक 400 से भी ज़्यादा ग्रोसरीज स्टार्ट हो चुके हैं, बट वो फेल हो चुके हैं, जिसमें दूध वाला, पेपर टैप, लीड बनियान जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। स्विगी ने अपना सुपर डेली सर्विस को बैंगलोर में अपना हर जगह बंद कर दिया, बैंगलोर हर जगह बंद कर दिया। लाइक द मोस्ट ग्रोइंग कंपनी लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, डंजो, बिग बास्केट, all companies operates his a great loss for many years. Now the basic comes in our mind, like why grocery startup has been failed in India and why it's not make a good profitable business. You know reason why. So watch this video till end, and moreover we know about why Mukesh Ambani, Ratan Tata, big industrial invest his money. Before we know about the reason, the first thing that comes into our mind, like how groceries can be delivered within 10 minutes. This is a major question. So now let me discuss this question. First reason is dark store. As while you're ordering any site with Blinkit, Zepto, Dunzo through app, the order goes directly to the dark store. These dark stores are allocated in nearby radius to 1 to 4 kilometers. And dark store is a place where companies store 2k to 3k inventory. It's just like a normal supermarket, okay? But walk-in customer are not allowed in dark store, not allowed. एक छोटा डेटा स्टोर में एक मैनेजर और एक एम्प्लॉयज को मिलाकर कुल 15 से 20 लोग होते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, आपके ऑर्डर को पैक किया जाता है, बिल्ड किया जाता है और डिलीवरी बॉय को देते हैं। डिलीवरी बॉय के ऐप के थ्रू पता चल जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट आपके घर तक पहुंचने के लिए कौन सा आपका शॉर्टेस्ट रूट होता है। विद इन 10 मिनट वो डिलीवर कर देता है। जो डार्क स्टोर होती है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लिंक हो, जैसे ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी बॉय अलॉटमेंट, प्रोवाइड शॉर्टेस्ट रूट टू डिलीवरी बॉय टू डिलीट अनअवेलेबल आइटम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाटा। सो इन डार्क स्टोर के पास इतना डाटा है कि रिलायंस और डीमार्ट जैसे कंपनी के लिए गोल्ड माइंस की तरह काम करे, जो कि लोकेशन, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी बॉय को करना आपको ऑर्डर 10 मिनट में मिल जाता है। स्टैटिस्टिक्स बताती है 2018 बिग बास्केट इज द फर्स्ट कंपनी यूज dark side and now acquire all costs such as Zomato, Dunzo, Rapido. सबसे ज़्यादा efficient कौन है इसमें से? तो सबसे ज़्यादा efficient है Zepto भाई। The thing is why grocery startup fail and what is the major challenges come from eliminate to the companies to make a good profit. The first thing is our like kirana shop. Our shop will acquire a large network in every tier 2 to tier 3 cities. That there is at least one kirana store here which is nearby at your location that is easily available. That is why people usually buy product from nearby shop. लेकिन क्या इससे फायदा होगा दुकानों से ग्रोसरीज लेने के, जबकि हमारे घर पर ग्रोसरीज पहुंच रही है, तो कुछ बिना कोई चार्ज देने पड़ रहे हैं। तो इसका देने का दो फायदा है दोस्त। फिर डिस्काउंट, जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है रेगुलर कस्टमर होने के कारण। अगर नहीं भी मिलती तो दूसरे अपने नियर बाई शॉप आपकी कस्टमर रिलेशन एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। वहाँ पे जाकर कोई थोड़ी सी आपको हैप्पीनेस होती है, हंसी मजाक कर लेते हैं। फिर यही नहीं, बहुत से लोगों से अपने छोटू से आपके घर तक सामान डिलीवर भी करवा देते हैं, ग्रोसरी पहुंचा देते हैं। इसलिए ये कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज में एंट्री करते नहीं है। द सेकेंड रीजन लाइक टिकट साइज ऐसा नहीं है कि इंडिया के अलावा कोई भी कहीं भी डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हुआ। लाइक अमेरिका, यूएसए में हर एक कस्टमर अपना महीने या 15 दिन का राशन जरूर मंगवाता है।
एक बार और एक हैबिचुएटेड वहाँ पे एक लोग हैबिचुएटेड हो गए, हैबिचुअल हो गए हैं, आदत हो गई है, कस्टमर हैबिचुएटेड कस्टमर बिहेवियर है. The people in USA average value order is 10 to 12K, but in India groceries item mainly choose from emergency items. So India average order value is less than 300 to 400 rupees. So question is, what is the problem in low order value? The groceries item पर average margin value होती है 10 to 20% दोस्त, और किसी भी चीज़ों पर 20% average 15% only. तो seller sell just let's just say take a customer order value of rupees 500 rupees, then 15% margin, then it will cost like 75 rupees discount, जो कि ग्रॉस मार्जिन है. लेकिन व्हाट अबाउट नेट मार्जिन? तो इसमें एक सबसे पहले करोगे एक डेटा चार्ज, डिलीवरी चार्ज जो मिनिमम होती है 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, तो बचे सिर्फ कितने रुपए? 45 रुपीज़ बचे आपको. तो जो डार्क स्टोर एंड ऑपरेट्स करने के लिए जो कि एक्सपेंस होता है, कस्टमर सैलरीज एड्स हर चीज़ को करोगे तो कंपनी आज माइनस में जाएगी. इसके बाद हो जाता है ऐड, हो जाता है डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, यूज कोड IPC50 जो हर इंडियन कस्टमर को चाहिए. थर्ड चैलेंज इज डिलीवरी इनएफिशिएंट. इंडस्ट्रीज एवरेज एट्रीब्यूशन रोल ऑफ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 10 to 20%. मतलब है कि 100 में से 20 डिलीवरी बॉयज हर महीने जॉब को क्विट कर रहे हैं, और जो नए डिलीवरी बॉयज आते हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी ओल्ड से वाली से मैच नहीं हो पाती. So there's a biggest reason that like delivery charge increase to 100. और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम, एड्रेस प्रॉब्लम, रॉन्ग ऑर्डर एलोकेशन, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है जो कि, और इसी कारण डिलीवरी एक्सपेंस का मैक्सिमम टाइम बढ़ जाता है दोस्त. और इस इफिशिएंसी को मैच करना इतना आसान नहीं है. फोर्थ रीजन, टिपिकल इंडियन कस्टमर. एक सर्वे से पता चला है कि 50% ग्रोसरी लोग ऑनलाइन डिस्काउंट के कारण खरीद रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट जिसे फर्स्ट ऑर्डर आपको मिलती है लोग उससे दूसरे ऑर्डर करते ही नहीं. लाइक फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट आपको 50% मिलता है तो लोग दूसरे ऑर्डर करते नहीं, और सेकंड नंबर से लॉग इन कर लेते हैं, स्विच कर जाते हैं. लेकिन वापस से डिस्काउंट के लिए जिस आइटम पे मार्जिन 75 रुपीज़ है और उसके 100 रुपीज़ डिस्काउंट ही करेंगे तो कंपनी तो सिर्फ लॉस में ही जाएगी ना दोस्त. इसलिए पेपर टैप के CEO ने कहा था कि हर एक ऑर्डर नेगेटिव मार्जिन पे चल रही है आज दोस्त. सो अवर प्रॉफिटेबल इज नॉट ईजी. यही सेम हालात स्विगी का भी है, जोमेटो का भी है. फिफ्थ रीजन इज मार्केटिंग कॉस्ट. आपने देखा होगा कि ब्लिंकिट के कितने ऐड आते हैं मोबाइल पे. कितने FY 2020 में 200 करोड़ और 2021 में 100 करोड़ सिर्फ उसने मार्केटिंग पे खर्च किया है दोस्त. और लॉसेस होगी तो लास्ट ईयर लॉसेस हुई ब्लिंकिट की 557 करोड़ रुपीज़. यानी कि मतलब 20% पार्टनरशिप सिर्फ मार्केटिंग पे है. लेकिन मार्केटिंग को हटा भी दे तो तभी तो ये कंपनी ह्यूज लॉसेस में चली जाएगी. इसलिए वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि 6 ऑफ द लास्ट चैलेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर बिहेवियर. आप ही सोचो ना, हमारे यहाँ शॉपिंग पर टाइम वेस्ट समझा जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली बस हम लोग एंटरटेनमेंट आज भी मैक्सिमम लोग संडे को सुपरमार्केट और मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एक चीज़ तरीका है, फैमिली का आदत हो चुकी है, फैमिली को विद फैमिली टाइम स्पेंड करने का. और फिर हमारे घर में एक साथ सामान आने के बजाय टुकड़ों में सामान आ रही है, फिर ऑनलाइन भरोसा नहीं है. लोग आज भी हमारे आंटीज मम्मी क्लॉथ और ग्रोसरीज कपड़े पे विश्वास नहीं करते. वो आज भी बार्गेनिंग करते, वो आज भी नियर बाई शॉप जाके चाचा से बार्गेनिंग करना चाहते हैं. बार्गेनिंग करते हैं. और बिजनेस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सबसे मुश्किल होता है टू चेंज कस्टमर बिहेवियर. बट इज दिस इम्पॉसिबल? ओके, जब मैगी कैलॉग्स के फेल हुए, लेकिन इन्होंने कस्टमर बिहेवियर को समझा कर रियल क्या है, कस्टमर बिहेवियर क्या है. जोमेटो से पहले कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं करने की किसी का आदत नहीं थी. इतिहास गवाह है कि जिस कंपनी को सक्सेसफुल होना है कस्टमर बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा. और इसी कारण से जैसे ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो, डंजो, स्विगी, बस इसी कारण से रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे दिमाग वाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हाई वॉल्यूम इंडस्ट्रीज है. आप अमेजोन से इलेक्ट्रॉनिक सामान साल में 4 बार 5 बार ही मंगाएंगे, बट यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरीज अगर आप डेली मंगवा रहे हैं, अगर सप्ताह में 3-4 दिन भी मंगवा रहे हैं, 400-500 उसका टिकट साइज है, तो आप इसका प्रॉफिट देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. इसलिए आज सारे इंडस्ट्री इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. थैंक यू सो मच. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़.